can we start? So we are back with some more questions. तो हम लोग लास्ट कई टाइम से ये स्टेट करेक्ट इनकरेक्ट विथ रीजंस द शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस कर रहे थे. सो इन दिस पर्टिकुलर बुक इट्स क्वेश्चन 30. कोई के अगर पेज नंबर्स अलग भी हो, क्वेश्चन नंबर्स भी अलग हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लुक हियर. Yes, can I start? Okay, there was some technical problem. We are back. So अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे. If the auditor believes that the concern will not continue as going concern, he should issue a disclaimer of opinion. No, बल्कि ये तो वो केस बन जाता है जब आपको पता ही चल गया है ऑडिटर को कि ये गोइंग कंसर्न नहीं है. He should issue an adverse opinion. और इसमें अगर आपको ऐसे का नंबर याद हो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज अ शॉर्ट क्वेश्चन तो इट विल क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट. ऐसे 570 इस बात को बोलता है that if the financial statements have been prepared on a going concern basis, but in the auditor's judgment, management's use, language देखो, management's use of the going concern assumption is inappropriate, then the auditor shall express adverse opinion. कि मैनेजमेंट का जो assumption है जिसके आधार पर उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया है वो उचित नहीं है, देन द ऑडिटर विल गिव एन एडवर्स ओपिनियन. इज इट ओके? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. उसी तरह यहां पर देखोगे आप एक क्वेश्चन जो नजर आ रहा है मेरे को. मैनेजमेंट सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर इज इनफ फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री. तो पहले तो आपको ये याद आना चाहिए कि मैनेजमेंट जब सर्टिफिकेट देता है इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? Written representations. This is known as written representations, and they do not substitute other audit evidences. Auditor को दूसरे supporting corroborative audit evidence from other sources हासिल करना ही चाहिए. आप ये languages आंसर में जरूर देखना. वो other sources inside या outside हो सकते हैं the entity, to evaluate whether the representations are reasonable. language ध्यान से आना चाहिए आंसर में. and consistent with other audit evidence. तो इसको important लिखो because कई लोग ऐसे 580 को ignore कर देते हैं unimportant ऐसे समझ के, but it may come in your short question true and false के संग. so ये चीज चेक करते हुए मुझे आगे जाना है. so representation received from management cannot be a substitute, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, for other audit evidence. So ये आंसर्स आपके इस तरह बनने चाहिए that auditor has to get some other audit evidence from other sources so that the evidence from other sources that is consistent with the management representations, whether the representations are reasonable, reliable, ये सब चीजें मुझे देखनी पड़ेगी. Okay, these are very simple ones. Now यहाँ पे 35 में आओ फिर से. Taking management representation is a convenient, economical and equally acceptable auditing method even where the direct access by the auditor to the audit evidence is possible. Okay, पढ़ो एक बार. Yeah, we are back. Taking management representation is convenient even where the direct access by the auditor is possible. तो देखिए मेरा ये मानना है कि जहां डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल है वहां पे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन को हम इक्वली एक्सेप्टेबल मेथड बोल दें, ये उतना उचित नहीं लग रहा है. देखो यहां पर लाइंस देखो और ये आंसर्स में स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. जहां डायरेक्ट एक्सेस अवेलेबल है, इट्स बेटर दैट ऑडिटर हिमसेल्फ कैरीज आउट द प्रोसीजर्स एंड कलेक्ट्स हिज पार्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस. ओके ओके, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 37 या जो भी नंबर हो आपकी बुक में. A company which has been unable to negotiate borrowings from its bankers claims that it will be able to continue as a going concern. Very interesting. वो बोल रहा है मैं फिर भी ठीक हो सकता हूं. The statement will be considered true अगर हम ये चेक करेंगे कि there are some other mitigating factors also जिससे मेरे ability को मैं support कर सकूं कि that I'll be able to pay everything soon. The statement which has been that he has been unable to negotiate borrowings, that it will be still a going concern. हो सकता है कि जो inability है कि बैंक मेरा बात नहीं सुन रहा है, मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं कर रहा है, इट कैन बी ड्यू टू रीजंस अदर देन द कंपनीज फाइनेंशियल वीकनेस के कारण भी हो सकता है. फाइनेंशियल वीकनेस नहीं है, उसके कारण के अलावा भी हो सकता है, सॉरी. But the statement will be considered false
when there is sufficient doubt over the ability, यानी कि देखो एक मिनट, वेरी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट लिखो, ट्रू है फॉल्स फर्स्ट में नहीं लिखा है, यहां पर बहुत घुमा के आंसर दिया है, दो एस्पेक्ट दिए यहाँ पे, ट्रू भी लिखा है फॉल्स भी लिखा है, तो यू कैन मेक पार्टली ट्रू एंड पार्टली फॉल्स एंड देन एक्सप्लेन कि अगर आप बैंकों से भी नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज बैंक को भी डाउट है आपकी एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, तब तो खराब है आपकी हालत। और हो सकता है बैंक कोई और कारणवश अभी नेगोशिएट नहीं किया, आरबीआई का कोई सर्कुलर आया हुआ है कि इस तरह और रेट किसी का कम नहीं करना है। सो बोथ आंसर्स हैव टू बी एक्सप्लेन्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो इंपॉर्टेंट लिख दिया बिकॉज यहां पर थोड़ा प्रैक्टिस की दरकार पड़ेगी। A company which has been unable to negotiate borrowings from its bankers claims that it will be able to continue as a going concern, हो सकता है हो जाए, एंड ये तो डाउट की बात हो जा रही है कि आप बैंक भी आप पर अपना कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब आपकी हालत खराब ही है। बोथ द आंसर्स। उसी तरह यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चंस और भी हैं which are very very easy ones, so I am not reading it out again। जहां पे भी मुझे लगेगा कि कुछ दरकार हो, विल श्योरली डू। अच्छा ये वाले पे आइए, द ऑडिटी फर्म हैज नो राइट टू कंपेल, यानी कि क्लाइंट हैज नो राइट टू कंपेल टू प्रोवाइड कॉपीज ऑफ वर्किंग पेपर्स, करेक्ट। सब मेरे से ही तो वर्किंग पेपर्स बनाया है, मेरे डॉक्यूमेंट्स को देखकर मैं वर्किंग पेपर्स क्यों नहीं क्लेम कर सकता? आप नहीं कर सकते बिकॉज वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, एट हिज डिस्क्रिशन ही मे अलाउ एनीवन to take the copies। This is essay 230 मिला। उसी तरह यहां पर देखोगे आप और भी दिया हुआ है, confirmations received by the auditor directly from third parties are conclusive evidence in support of a transaction। The statement is incorrect। Confirmation received directly from third parties are more reliable, but you cannot consider it as a conclusive evidence। Very good one। आपको लगेगा हाँ ये तो conclusive है, मैं तो directly पाया हूं, ये reliable ज्यादा है, इसको आप ये नहीं बोल सकते ये conclusive हो गया। Actually audit में ये भी line add कर सकते थे, most of the audit evidence is dash। बताओ मैं क्या word लिखवाना चाहूंगा? Anyone? Before I write, can you think? Most of the audit evidence is persuasive। ओके पक्का एवरीवन? तो ये छोटे छोटे कॉपीज यहां पर टॉपिक्स दिख रहे थे, सॉरी ये ब्रांच ऑडिटर अब आपके सिलेबस में नहीं है, आप मत करिएगा, पर ये ब्रांच ऑडिटर्स से रिलेटेड एक्चुअली नहीं है टॉपिक। देखो ब्रांच ऑडिटर वर्ड जरूर आया बट लिखा है दे ब्रांच ऑडिटर शुड गिव फोटो कॉपीज ऑफ हिज वर्किंग ऑन डिमांड बाय द कंपनी ऑडिटर। नो अगेन ये एक्चुअली 230 का ही है, यू विल डू इट, क्योंकि यहां पर वो प्रॉपर्टी प्रिंसिपल ऑडिटर भी ब्रांच ऑडिटर को फोर्स नहीं कर सकता है कि मुझे दिखाइए। ओके यहां तक पढ़ना है। दे डू नॉट हैव राइट ऑफ एक्सेस टू द ऑडिट वर्किंग पेपर्स, ये पोर्शन दरकार नहीं है, बट ये जो लाइंस दिख रही है दे डू नॉट हैव द राइट ऑफ एक्सेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो ट्रू एंड करेक्ट व्यू, ऑफ कोर्स फॉल्स, द वर्ड इज ट्रू एंड फेयर। अब इसमें भी देखो छोटा सा सिंपल आंसर है, बट राइटिंग पैटर्न देखो, इसमें फिर सेक्शन 129 का रेफरेंस दिया गया, यानी कि 129 भी ट्रू एंड फेयर वर्ड पर एम्फसाइज करता है, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली टीएनएफवी, जो हम लोग कई बार पढ़े हैं कि टीएनएफवी क्या होता है। सो मार्केट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कला है। ओके सो दिस वॉज अ स्मॉल डिस्कशन, अभी थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं, उसके बाद इसको कंप्लीट करूंगा। वापस देखो रिटन रिप्रेजेंटेशन पर, रिटन रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट एज टू द क्वालिटी ऑफ इन्वेंट्री सब्स्टिट्यूट फॉर वेरिफिकेशन, नेवर। तो इट कैन नेवर बी अ सब्स्टिट्यूट, और इसमें फिर आप वो लाइंस ऐड कर सकते हैं, द ऑडिटर शुड ट्राई टू ऑब्टेन अदर कोलैबोरेटिव एविडेंस टू ensure that the evidence which he has obtained and the evidence which management has given are consistent with each other। ये सब चीजें लिखनी चाहिए। ये सब सिंपल पार्ट्स चल रहे हैं। इवैल्यूएटिंग रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस। वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंक्वायरी में आपको याद, आप क्वेश्चंस पूछते हैं कई टाइप के, उन क्वेश्चंस
कि क्या रिस्पॉन्स आते हैं वो भी आपको इवेलुएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो इसमें आप आंसर में कैसे डेवलप करोगे? आप इंक्वायरी ऐसे 500 के अंदर यूज हुआ था, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग द एविडेंस। यहाँ पे बताओगे इट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल विद इन द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी। तो यू हैव डिफाइंड इंक्वायरी हियर, वरना ये आंसर में आप लिखते क्या? यानी कि ये चीज समझ रखो कि इट कैन नॉट बी वन लाइनर आंसर, मिनिमम 3 लाइन्स 5 लाइन्स तक आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, और ये प्रैक्टिस से डेवलप होता है व्हेन यू आर रीडिंग वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। ओके, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना चाहिए, ये सब सिंपल चीजें हैं, दीज आर वेरी सिंपल वंस। सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन, वर्किंग पेपर्स पर direct question. So in this particular small session we have seen that there are questions which are related to documentation and working papers. ये ब्रांच ऑडिटर वाले क्वेश्चन, फोटोकॉपीज जो प्रिंसिपल ऑडिटर भी फोर्स नहीं कर सकता है ब्रांच ऑडिटर को कि अपने वर्किंग पेपर्स दिखाओ, बिकॉज आपको रेफर करना होगा, ऐसे 230 में लिखा हुआ है दैट वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। ओके, और उसके बाद यहां पर देखो 2 क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखो 54 देख लें एक बार। The audit engagement documentation should ordinarily be retained by the auditor for minimum of 6 years from the date of auditor's report or whichever is later. ऐसा कुछ लिखा हुआ है, but answer is actually what minimum 7 years from the date of audit report। और ये बात हमारे कहाँ लिखी हुई SQC में, और ऐसे 230 को हम जब कंबाइंड रीडिंग करते हैं देन दिस थिंग बेसिकली कम्स आउट। सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस डन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, एंड आई थिंक यहां से अब आपको कोई कंफ्यूजन और नहीं होगा। Now, इसके पहले एक चीज बता दूं, मैंने और भी क्लिपिंग्स वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस पर दिया था, इसके मार्क्ड पीडीएफ को मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा, अगर वीडियो देखने का टाइम नहीं हो तो। मार्क्ड पीडीएफ को क्यों देखना? बिकॉज आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर्स, नॉट टू मेक इट अट्रैक्टिव, बल्कि आपको क्या, आप जब रीड करें आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये 2-3 चीजें आंसर्स में आनी चाहिए। एक सिंगल कलर से अंडरलाइनिंग करता तो आपको पता नहीं चलता कि उस आंसर में 3 पार्ट्स या सब पार्ट्स है। तो जहां एज पर द रिक्वायरमेंट आई एम अंडरलाइनिंग 2-3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्स हियर। नाउ एक चीज मैं वापस रिपीट कर दूं, आई हैव डन नंबर ऑफ टाइम्स दैट ये सब जो चैप्टर्स है लाइक ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, लुक हियर एवरीवन, audit in automated environment, bank audit, audit of special entities, मैंने करवाया भी है अभी, और फिर से मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूं एग्जाम के पहले। बुक के पीछे वाले क्वेश्चन आंसर्स आप जरूर करिएगा, नए बुक्स में अभी जो मैंने पीडीएफ सर्कुलेट किया उसमें मैंने इनकॉर्पोरेट किया है। कौन से क्वेश्चन आंसर्स? करेक्ट इनकरेक्ट वाले, करेक्ट इनकरेक्ट विथ रीजंस, क्योंकि वहीं से रिपीट हो जाते हैं, पहले से प्रैक्टिस होने से आपको सोचने पर टाइम नहीं जाएगा। तो ऑडिट की पढ़ाई बहुत स्ट्रैटेजिकली करनी चाहिए कि करेक्ट इनकरेक्ट पे मेरे को एग्जाम के एक दिन पहले भी रिवीजन टाइम देना, अगर पहले नहीं किया हुआ है। देन आई हैव टू कवर माय मेन एरियाज जहां से क्वेश्चंस आते हैं। पास्ट पेपर्स को जरूर देखना चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स को, कि ये आने से ये आंसर होता है, या पेपर में किस तरह क्वेश्चन स्प्रेड होते हैं, किस जोन से कहां पूछा जाता है। सो प्लीज डू पास्ट क्वेश्चन आंसर, बुक के पीछे जो दिए हुए हैं एट द एंड ऑफ द बुक, प्लीज डू दैट। ओके, सो ये स्मॉल क्लिपिंग हम यहीं पर एक बार रोकते हैं। थैंक यू।